نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 28ویں پارے کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مجادلہ سے آغاز ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ اکرام کے زمانہ جاہلیت کے جو رسم و رواج تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر توڑا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قانون سکھلائے ہیں۔ ساتھ ان کی تربیت اس ترتیب پر کی ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو جو جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے لیے، وتشتکی الی اللہ، اور اپنی شکوہ شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ حضرت خولہ بنت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، اور اس نے آ کر اپنے خاوند کے متعلق یہ کہا کہ میرے جو خاوند اوس ہیں انہوں نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت سے یہ رسم چلی آ رہی تھی۔ زہار کے اندر کیا تھا کہ اپنی جو ہے بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ انت علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ یعنی اپنی بیوی کو محرمات کے ساتھ جو ہے تشبیہ دیتے تھے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر ہے اس طرح میرے اوپر ہے۔ تو اس پر فرمایا زمانہ جاہلیت میں وہ عورت مطلقاً اس خاوند کے لیے حرام ہو جاتی تھی، حق زوجیت سے نکل جاتی تھی، گویا کہ یہ ایک طلاق کی جو ہے قسم تھی۔ تو اس نے آ کر کہا کہ میرے خاوند کا میرے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اوس کا۔ خولہ بنت صلبہ کہہ رہی ہے کہ اوس کا میرے خاوند کا میرے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اور اس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ اب میرے بچے بھی ہیں اور میں نے اپنی جوانی اس کے ساتھ گزار دی ہے، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں آگے کہاں جاؤں، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اس سے جدا ہو گئی، تو آپ مہربانی کریں، جو ہے میں اگر بچے اپنے ساتھ رکھتی ہوں تو بچوں کا بوجھ مجھ پر پڑتا ہے اور میں نہیں برداشت کر سکتی، آپ کوئی میرے لیے صورت نکالیں۔ اور وہ رو بھی رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ آپ سے کہہ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنی خاموشی سے کہہ رہی تھی کہ جو ہے اس کی کچھ باتیں مجھے سنائی دیتی تھی اور کچھ کو میں سن بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ واللہ یسمع تحاورکما، محبوب ہم نے آپ دونوں کی مکمل گفتگو کو سن لیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو عرش پر بیٹھ کر فرش کی باتیں، اور وہ بھی جو بندہ بندے کو صاف سنا بھی نہیں رہا اس کو اللہ تعالیٰ کتنی صفائی سے سن رہے ہیں، کتنے اہتمام کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہوں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کریں اپنی بیویوں میں سے، ما ہن امہاتہم، ان کی وہ مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رد کیا یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے، اور جو اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیتا ہے تو وہ اس کہنے سے ماں نہیں ہو جاتی، ہاں ان کی مائیں وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ہاں یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرمات کے اندر آتے ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ان کا ایسا کہنا نہایت مکروہ اور بری بات ہے۔ یعنی جو ایسا اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو فرمایا ایسا کہنا نہایت مکروہ اور بری بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اس پر استغفار کیا جائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اور کفارہ زہار بھی ہے، یعنی اگر کوئی اپنی ماں اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیتا ہے، بیٹی کی طرح کہہ دیتا ہے، بہن کی طرح کہہ دیتا ہے، تو اس پر کفارہ زہار آئے گا۔
आगे उसको अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, और वो लोग जो ज़िहार कर लें अपनी औरतों से, सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू, फिर वो अपनी कौल की तरफ, अपनी बात की तरफ लौटना चाहें, तो उसकी सूरत क्या है? पहली सूरत फरमाया फ़तहरीरु रक़बा, बस उन्हें चाहिए कि एक गुलाम आज़ाद करें। फ़तहरीरु रक़बा, एक गुलाम आज़ाद करें, मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, इससे पहले कि अपनी बीवी के पास जाए, अपनी बीवी को छुए, उससे पहले पहले एक गुलाम आज़ाद कर दे। फरमाया सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा ज़ालिकुम तुअज़ून बि, अल्लाह ताला इसके साथ तुम्हें नसीहत कर रहे हैं। ज़माना जाहिलियत का अल्लाह ने रद्द भी कर दिया, रस्म को ख़त्म भी कर दिया, और अपने हुदूद को भी कायम कर दिया कि ज़माना जाहिलियत में जो एक बार कह देता कि तू मेरी माँ की तरह है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए फारिग, और तुम्हारे लिए ये है कि मेरे जो हुदूद हैं, मेरी जो कानून है, यानी मुहर्रमात जो मैंने बनाई है, उनके साथ इस किस्म की जो है वो कैफियत करता है, यानी उनके साथ इस किस्म का कोई इज़हार करता है, तो उसके लिए ये मेरा यूँ समझो कि कफ़ारा है और उसकी तरफ से नसीहत है कि सबसे पहले वो ग़ुलाम आज़ाद करे। और फिर फरमाया वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, और अल्लाह ताला जानता है उन बातों को जो तुम करते हो, उन कामों को जो तुम करते हो। फमन लम यजिद फसियाम, बस अगर ना पाए एक ग़ुलाम को, यानी अगर ग़ुलाम आज़ाद करने की ताकत नहीं है उसमें, फसियाम शहरैनि मुतताबिऐनि मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, बस 2 महीने के रोज़े रखे, यानी 60 रोज़े रखे, मुतताबिऐन, पै दर पे मुसलसल, एक के बाद दूसरा, इससे पहले कि अपनी बीवी के करीब जाए। यानी अगर ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकता तो फिर कफ़ारा ज़िहार है कि अपने जो है ना 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे। ये नहीं है कि 1 महीना रखा और गैप कर दिया, फिर नहीं, अगर छूट गए हैं रोज़े तो फिर 2 महीने के रखे, वो ख़त्म, फिर मुसलसल। यानी ये जो कैद आई है, आइम्मा कहते हैं, इमाम अरबा जो 4 इमाम बड़े इमाम हैं, उन्होंने बहस के बाद जो समरा निकाला है कि ये जो मुतताबिईन का लफ्ज़ आया है, ये एक के बाद दूसरा है, यानी मुसलसल आया है कि मुसलसल 2 महीने के रोज़े रखे। फमन लम यस्तती, पस अगर 2 महीने के रोज़े रखने की वो ताकत इस्तिताअत नहीं रखता, तो फरमाया फ़इत्आमु सित्तीन, फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाए, 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। अब किफ़ारा ज़िहार के 3 जो है वो आ गए अदद। पहला ये कि ग़ुलाम आज़ाद करे, दूसरा ये कि 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रखे, तीसरा ये कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ये इसलिए है कि ताकि तुम ईमान में पक्के हो जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ। व तिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह ताला की हुदूद है, यानी अल्लाह ताला के कानून है। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और जो काफिर हैं, यानी जो इनकी पासदारी नहीं करते, हुदूद व क़ुयूद का एहतराम नहीं करते, फरमाया अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुनकर, यानी खौला बिन्त सलबा की बात सुनकर ये कानून उतार दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि भाई अल्लाह ताला ने तेरी जो है बात भी सुनी है, और तेरी जो है परेशानी भी दूर कर दी है, और नसीहत भी कर दी है कि आइंदा से इस चीज़ का एहतमाम कोई ना करे, और ज़माना जाहिलियत की रस्म का भी रद्द कर दिया है। तो फरमाया इसकी कोई हकीकत नहीं है कि जो अपनी बीवी को कह दे और वो अब उस पर माँ ही हो गई है, अब उसका लौटना बिल्कुल नामुमकिन है। फरमाया नहीं, माएँ वही हैं जिन्होंने जन्म दिया है, हाँ, इसकी सूरत में कफ़ारा है। तो इस पर खौला बिन्त सलबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो बहुत गरीब हैं, और जो है हम कैसे ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं, और 2 महीने के मुसलसल रोज़े रमज़ान के बड़ी मुश्किल से रखते हैं, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हैं, हम 2 महीनों के रोज़े नहीं रख सकते। हाँ, जो अगर आपने 60 मस्कीनों को खाना खिलाया, उसमें आप जो है वो हमारी कोई मुआमलत ना, उसमें जो है वो गौर, उसने कहा कि गौर करूँगा। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक इर्के यमानी, खजूरों का एक पैमाना होता है, वो तुम्हें दूंगा अपनी तरफ से, और जो है तुम उसे अपने खामन को दे देना। तो इस पर उसने कहा कि मैं भी जो है अपने जो है मेके से, रोज़ से मेहनत करके ना 1 सा खजूरों का मैं भी इकट्ठा करके अपने खामन को दूंगी। और इस सूरत में, दोनों सूरतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खामन को कहा है। तो इससे ये भी साबित होता है कि तलाक का हक सिर्फ और सिर्फ खामन को है, यानी जिस तरह जितने भी जो तलाक की मद में जो कफ़ारे होते हैं वो खामन पर आ रहे हैं, तो इस सूरत में तलाक भी हमेशा हमेशा के लिए खामन ही का हक है कि खामन ही दे सकता है। तो इसलिए बीवी ने कहा कि अल्लाह के नबी, जब आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, तो मैं भी जो है ना 1 सा खजूरों का अपने खामन को इकट्ठा करके दूंगी, और फिर
इस सूरत में हम 60 मस्कीनों को खाना खिला देंगे। तो आपने फरमाया हाँ ये सूरत ठीक है, और फिर इस सूरत में जो है तो उस पर हलाल हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी। लेकिन अब से ये कानून बन गया है, हद यही है क़यामत तक के आने वाले आप इंसान के लिए कि आज भी अगर कोई अपनी बीवी के साथ ज़िहार करता है, उसको कह देता है तुम मेरी बेटी की तरह है, माँ की तरह है, जो है बहन की तरह है। अब आइम्मा ने इसके अंदर जो है वो थोड़ी, चूँकि आइम्मा का इख्तलाफ रहमत है, उन्होंने फरमाया है कि इसमें नीयत का भी एतबार है। एक आदमी कहता है अपनी बीवी से कि तू मेरी माँ की तरह है, अब उससे नीयत पूछ जाएगी, भाई माँ की तरह, माँ से इस तरह जो है इस किस्म के ताल्लुकात सरासर जो है हराम है, क्या तू ये चाहता है कि अब से तुझसे ये फारिग हो गई है? तो कहता है नहीं भाई नहीं, मेरी तो नीयत ये थी कि ये जो है हुस्न सलूक के अंदर, ये मेरी हमदर्दी के अंदर, ये मेरी खिदमत के अंदर मेरी माँ की तरह है, यानी जिस तरह ये मेरी माँ खिदमत करती है और जो है कितनी मुझे अजीज़ रखती है, तो इस तरह ये मेरी बीवी भी। तो इस सूरत में जो है फरमाया ज़िहार नहीं होगा, ज़िहार उसकी नीयत पर होगा। जैसे एक आदमी अपनी बीवी से कहता है जा चली जा, तो मुझसे जो है जा इस वक्त चली जा, तो चली जा, तो अब ज़ाहिरी बात है ये भी एक तलाक की कैफियत होती है। अक्सर लोग कहते हैं तलाक हो गई, तो अब उससे नीयत हो जाए तो वो कहेगा भाई उस वक्त मुझे गुस्सा था, मैंने इसलिए कहा कि चली जा, जो है। फिर ऐसे अल्फाज और भी आए हैं कि तू अपने आप को मुझसे दूर कर ले, यानी तू अपने आप को मुझसे दूर चले जा कर ले, मैं के चली जा। तो इस सूरत में वो ये कहेगा कि भाई फ़िलहाल जो है वो मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मैंने इसलिए कहा कि तुम मुझसे दूर हो जा। तो ये भी सराही और किनाई बहस है जो अइम्मा के दरमियान है। तो फरमाया ज़िहार इस सूरत में होगा कि अगर उसकी नीयत भी दुरुस्त हो गया कि वाकई मैंने इसे अपनी माँ के साथ तकबीर दी है, गुस्से में दी है या अपने जो है बचपने में दी है, तो इस सूरत में ये 3 कफ़ारे उस पर जो है लागू हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हलाक करेगा, ज़लील करेगा उनको अल्लाह ताला जैसा कि हलाक किया, ज़लील किया इनसे पहले लोगों को। वक़द अंज़लना आयातिन बय्यिनात, और तहक़ीक़ नाज़िल कर दी है अल्लाह ताला ने खुली निशानी, खुली तौर पर जो है आयात। वलिल-काफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन, और काफिरों के लिए सख्त इहानत वाला यानी ज़लील मुज़म्मत करने वाला अज़ाब है। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, और जिस दिन अल्लाह ताला खड़ा करेगा सारों को, मुराद इससे क़यामत का दिन है, महशर का मैदान है। फ़युनब्बिउहुम बिमा अमिलू, बस अल्लाह ताला खबर देगा उनको उनके कामों की। अहसाहुल्लाहु व नसूह, जिसका इहाता अल्लाह ने कर रखा है, जिनको जमा अल्लाह ने कर रखा है यानी आमाल को। व नसूह, अल्लाह ताला भूलता भी नहीं है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह ताला हर शय पर गवाह है, निगरान है। अल्लाह ताला ऐसी बातों पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक बात ज़हन में आ गई मसले के एतबार से, कफ़ारे के अंदर दूसरा आदमी भी उसकी मदद कर सकता है, यानी एक आदमी पर हाथ जारी हो गया, उसने वो मस्कीनों को खिलाना है, उसके पास इतना नहीं है, तो कोई उसका रिश्तेदार भाई उसको जो है दे सकता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक इल्के यमानी दूंगा,